podcast. Here we discuss books and topics that relate to this world and the next. We bring in a perspective of a group of friends who are trying to learn and spread the teachings to the common people. The views and opinions expressed in this episode are our own. In this episode, we discuss the book Forty Hadith by Imam Khomeini. Let's dive right in. और उसकी बेसिस पे ना इन्होंने ये पूरी किताब लिखी है. उन्होंने 40 हदीसें कवर की हैं. इसके अंदर टू गिव यू गाइस सम कॉन्टेक्स्ट, ये जो चैप्टर है इनका पहला, इसमें तकरीबन 11,000 वर्ड्स थे और इसके अंदर 23 पेज थे. सो इट वाज अ हैवी चैप्टर. तो व्हाट आई हैव डन इज कि आई हैव ऑलमोस्ट reduced it down to like 2000 words and उसमें key points क्या क्या हैं. तो जो पहली हदीस है, it's about Jihad of the Self, which is in Arabic Jihad द-ए-नफस. तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एक्चुअल हदीस है वो ये है कि कुछ rarely on seeing returning armies from the battlefront, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, blessed are those who have performed the minor jihad and have yet to perform the major one. So yeah, and when asked what is the major jihad, the Prophet replied, the jihad of the self, which is struggle against the self. तो अब इसके अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट उन्होंने एक्सप्लोर किया ना, वो ये है कि भाई जो सेल्फ है या जिसको आप नफ्स कहते हैं, वो है क्या चीज़. तो बेसिकली जो उसमें कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि भाई दैट it can be inferred that man is a marvel possessing two lives and two worlds exist within. So sabse pehle is your apparent life and your outward world, right, which is basically your body. So body ke andar unhone kaha hai ki bhai there are 7 organs which are most important. So the one is your ears, your eyes and your tongue. तो ये अगर आप याद करना चाहें तो these are on your face, right? Then you have your stomach, your private parts, your arms and your legs. So that is the external facing side of yourself. And then उन्होंने कहा कि inner self भी है जो hidden है और जो invisible है. And this relates to your soul, yeah, and your रूह. तो उन्होंने अगर आप दूसरी किताबें पढ़ें तो इसके अंदर जैसे नफ्स अम्मारा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना, ये बेसिकली टाइप्स हैं नफ्स की जो रूह के अंदर होती हैं, लेकिन वो इसकी डिटेल्स में नहीं गए. उन्होंने डिटेल्स ये दिए हैं कि हर इंसान के नफ्स के अंदर ना 3 पावर्स होती हैं. तो वो जो 3 पावर्स उन्होंने कोट किए हैं, इसमें एक तो क़ुव्वतुल वहमिया, व्हिच इज बेसिकली अ पावर ऑफ इन्वेंशन एंड इमेजिनेशन. फिर है क़ुव्वतुल ग़ज़बिया, व्हिच इज योर पावर ऑफ पैशन एंड एंगर. और फिर है क़ुव्वतुल वहमिया, व्हिच इज योर पावर ऑफ लस्ट एंड सेंसुअलिटी. तो बेसिकली उन्होंने सबसे पहले जो है वो डिफाइन किया कि सेल्फ है क्या, व्हिच इज वन योर बॉडी, which is these 7 parts, and then you have your inner self which has these 3 powers. So this is kind of like the overview of the self. उसके बाद उन्होंने ना आपको एक फ्रेमवर्क बताया कि आपको जहाद नफ्स करना कैसे. तो सबसे पहले जो है ना उन्होंने कुछ फंडामेंटल टेक्निक्स बताई हैं, which are like the more basic things you have to do like on a day-to-day basis before you do the more advanced steps. तो सबसे पहले जो 5 स्टेप है ना वो मैं कवर करूँगा. उसके लिए ना मैंने ये बेसिकली टेबल में डाल के ना कुछ टिप्स बताएंगे आप प्रैक्टिकली क्या कर सकते हैं. तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है कॉन्टेम्पलेशन का. तो उन्होंने कहा कि आप रोज़ जो है वो टाइम कुछ डेडिकेट करें. यू जस्ट सिट डाउन एंड लाइक कॉन्टेम्पलेट एंड यू रिफ्लेक्ट इन अ रैशनल मैनर के भाई अल्लाह ने जो आपके जितने भी ग्रेसेस दी हैं, आपको कितनी भी नेमतें दी हैं, so you just have to contemplate about that. And then you should not bargain like short-lived transitory joys, right? So you should try to like reason with yourself. एक pro tip जो मैंने उनकी उससे extract की है literature से, कि भाई आप अगर ये कि checklist बना लेना कि create a checklist as a reminder for the purpose of your life and contemplate on it at the start of the day. तो ये checklist है like who has brought us into this world, who has bestowed upon us all the means of pleasures and joys, who has equipped us with a sound body and faculties,
whether all these things are granted to us by Allah to serve the animal existence or to satisfy our appetite, or is there a higher reason for all these things? So basically अगर आप if you go through this checklist like every morning, और मैं पिछले एक हफ्ते से ये खुद कर रहा हूँ exercise, so it's an interesting thing, like so it kind of like helps you ground yourself early in the morning. उसके बाद जो दूसरी चीज़ उन्होंने बताई है, उन्होंने ये कहा है कि भाई once you have done your contemplation up front, then you get in talk about the concept of will resolution, right? So you have to have like a strong resolution. He says you have to like make a very strong niyat that you're going to purge your life from sins, you're going to familiarize yourself with sharia, you need to perform all obligatory acts, and then also like to behave as a rational and a religious person. उन्होंने इसमें एक चीज़ पे जोर दिया है कि भाई unless a person fully acquaints himself with knowledge of Sharia laws and follows them faithfully, the higher values of morality cannot be attained by him. So his point of view is that like you have to like learn about the deen and start applying it, and only then you can move to like other higher stages of combating with yourself. एक और चीज़ उन्होंने इसमें स्टेट की है कि उन्होंने कहा कि avoid haram music, giving ears to sounds of music and songs steals from men their willpower and power of resolution. So ये एक interesting चीज़ है जो जिसमें मैंने नोट की थी. सही जी. उसके बाद उन्होंने ना एक बेसिकली 3 स्टेप मेथड दिया है, जिसमें सबसे पहले वो कहलाता है मुशारता, which basically like उसका रूट वर्ड है शर्त, राइट? तो आप अपने साथ like every day आप अपने साथ एक शर्त लगाएं अपने ऊपर कि today I will not violate the laws of God. So and he said that it's easy to stick for it at least for one day. You make a daily vow like not to commit any sins today. सही है. दूसरी जो चीज़ है वो मुराकबा है. उसका जो रूट वर्ड है मेरे ख्याल में वो I'm not sure, लेकिन basically like it's about like constantly evaluating, right? तो जो उन्होंने कहा कि basically जो शख्स जिहाद कर रहा है मुजाहिद है, तो वो you're basically making a shart at the start of the day, but then muraqaba is like you're constantly evaluating your actions and your thoughts throughout the day, right? So you evaluate your daily actions, that you made a vow, you seek protection from Allah, then you remember Allah's graces, and then you repeat the process continuously basically. And then the fifth thing is that it's tazakkur, which is basically remembrance of Allah. And again like उसके अंदर आप मतलब अल्लाह को याद करें, अल्लाह की जो नेमतें आपको दी हैं वो याद करें आप. उसमें भी एक चेकलिस्ट अगर आप बना लें कि ड्यूरिंग मे बी मिडल ऑफ द डे you think about के the air we breathe, right, our bodily senses, like अल्लाह ने हमें इतने सारे guides भेजे हैं, then you reflect on the grandeur of the universe. This just helps you be more cognizant and conscious about Allah. तो ये बेसिकली इनके ना फंडामेंटल स्टेप्स हैं. जस्ट टू रिमेंबर देम, ये मैंने एक्रोनिम भी बनाया है लाइक CWMMT, राइट? तो C is contemplation and W is like for will, and then MM is for musharata and muraqaba, and then T is for tazakkur. So at least at a personal level, like I'm trying to like execute this for the last week, and I think at least trying to remember some of these things मतलब मेरी personally I'm feeling good about it. So ये basic steps हैं इनके, और उसके बाद फिर इनके ना कुछ advanced steps हैं इसके अंदर. तो I'll quickly like walk you guys through it. It's not a lot, but उसके अंदर इन्होंने जो है ना वो ये दिया हुआ है कि भाई जो advanced steps है ना, these are to do with like your inner powers of your nafs. So how do you actually tame them? तो इसके अंदर इन्होंने जो सबसे पहले जो चीज़ दी हुई है ना वो है इसके अंदर power. So what we have over here is like your what I did is I mapped all these like power instincts of the inner nafs to what good can they do for you and what bad can they do for you. But maybe before I move into this content, like what are your thoughts on the first piece? Maybe we can have a quick discussion on this. I think काफी अच्छा है ये समराइज करने. हसनैन तुम आप बात करें प्लीज. एक जो कॉन्सेप्ट है वो जिहाद नफ्स के अंदर जो आता है, वो जो सबसे पहली जो बात हो जाती है ना, वो जो डेफिनेशन है नफ्स की,
उसके ऊपर जैसे तुमने उसको दो दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया था, एक तो बॉडीली हो गई थी चीज, तो आर लाइक इज have I understood this correctly, ये क्या है 1 and 2 combined, is this Yes. this is 1 and 2 combined, okay. दूसरा फिर वो हो जाता था, वो जो एक एक बहुत बहुत कोटेड हदीस एक वो आ जाती है, जो बताया जैसे कि अली जो है वो रसूल अल्लाह के नफ्स है, Right. तो उसके भी क्या मायने हुए भाई, मतलब वो किस 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 कॉन्टेक्स्ट के अंदर लेना चाहिए उसे, कि क्या मायने हुए उसके, एक तरह से is it like all good because prophet is all good, तो लेकिन हमारे लिए की इम्प्लीकेशन क्या हुई उसकी, मेरी मेरी आज वो जो है वो थोड़ी क्लियर नहीं है चीज। सही वो उसके ऊपर उन्होंने कुछ रेफर नहीं किया उसके अंदर, राइट, maybe that's something I can look into on the side. और बाकी जो वो है, ये जो बाकी स्टेप्स आए हैं, ये भी मेरे ख्याल में पॉइंट नंबर 2 जो तुमने हाई लेवल कॉन्टेक्स्ट के ऊपर एक्सप्लेन किया हुआ था कि भाई उसके अंदर भी फिर वो दो चीजें और दो तीन और इस तरह बताई जाती हैं कि नफ्स से अम्मारा और लवामा, where do they fit into the three things that you have like Right. described? तो बेसिकली वो जो नफ्स है हमारा, नफ्स लवामा, नफ्स मुतमइन्ना है ना, तो उसके ऊपर उन्होंने इस चैप्टर में कोई डिस्कशन नहीं की। आई थिंक के बाद में जो चैप्टर्स आते हैं किताब के अंदर तो वो इंडिविजुअली उसको टैकल करते हैं, लेकिन जो है ना वो उनका जो फोकस ज़्यादा इसमें ये रहा है कि ही टॉक्स अबाउट लाइक दीज 3 पावर्स ऑफ द नफ्स। तो वो मैं उसको कवर कर लेता हूँ 5 मिनट के लिए, 5 मिनट चाहिए मुझे उसको कवर करने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे और कोई क्वेश्चंस हैं तो बताएं कि प्लस मैन आप कुछ कह रहे थे। मैं बस ये कहने लगा था कि बड़ा स्ट्रक्चर्ड आपकी अप्रोच है माशाल्लाह, लेकिन इसका लेकिन चेकलिस्ट वगैरह तो बात बिल्कुल सही है आपकी, लेकिन कोई ऐसी चीज हो जो कि लाइक कम्स नेचुरली एंड देन अ वेरी सिंपल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, जो बंदा एक चीज कर ले दिन में और इट जस्ट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। लाइक आई अंडरस्टैंड कि चेकलिस्ट तो बंदा मल्टीपल चेकलिस्ट होती हैं, लेकिन इज देयर लाइक जस्ट वन थिंग दैट वन कैन थिंक ऑफ and do to set off the day in the right direction? देखें लाइक ये स्ट्रक्चर ऑनेस्टली मेरा नहीं है, ये इमाम खुमैनी का स्ट्रक्चर है, तो लाइक दैट्स एक्चुअली हाउ ही रोट द चैप्टर। सही है, and even I was surprised to read it because it was like so structured. I just like summarized all of this. दूसरी चीज ये है कि उनका पॉइंट ये है कि भाई देखो, why is the like why do you call जिहाद अकबर versus जिहाद असगर, right? ये भी उन्होंने एक्सप्लेन किया था एक बात के अंदर। तो जिहाद असगर इसलिए है क्योंकि वो इट्स लाइक अ वन टाइम थिंग इन मोस्ट केसेस, राइट? आप जंग पे गए, जंग हुई, खत्म हो गई जंग, राइट? आप बच गए तो आप वापस आ गए, नहीं बचे तो शहीद हो गए। लेकिन जिहाद अकबर जो है वो इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग, राइट? सो लाइक आपको जिंदगी भर मरते दम तक आपको जिहाद अकबर करना है आपको। सो ऑनेस्टली देयर इज नो लाइक सिल्वर बुलेट कि आप एक दिन में, you have to be constantly in it, and that is how you will achieve victory, right? Because it's continuous, right? but yeah, I mean bottom line is that as his point of view is कि भाई अगर आप ये टेक्निक करेंगे, right? और ये सब ऑब्वियसली उन्होंने इमामों के अक़वाल, उनकी ज़िंदगियों से और उनकी सारे स्टडीज़ थी जितनी भी इमाम खुमैनी की, उससे थ्रू उन्होंने ये सब एक्सट्रैक्ट किया है जो लोगों के साथ शेयर की हैं चीज़ें। लेकिन यही है कि मतलब उसको एट द सिंपलेस्ट लेवल, राइट? इफ यू स्टार्ट योर डे विद लाइक सम कॉन्टेम्पलेशन एंड देन have like some will and resolution not to commit sins, and like constantly evaluate your actions during the day, and then at the same time tazakkur, so namaz is also a form of tazakkur, right? Allah ka zikr karna. So as far as you do the basic steps, like आपका 50% तो कवर हो ही गया, समझें, जिहाद अकबर। ठीक है जी। तो जो एडवांस चीजें वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ थोड़ी, क्या ख्याल है? बिल्कुल। अच्छा जी, एडवांस चीजें जो है ना वो फिर आ जाती हैं कॉन्सेप्ट के अंदर कि भाई आपके जो नफ्स है ना, वो उसके अंदर पावर्स या फैकल्टीज क्या क्या एग्जिस्ट करती हैं टुडे। तो जो नफ्स है उसमें जो बेस फैकल्टी है वो है पावर ऑफ पैशन और एंगर, सही है, उसको गज़ब भी कह सकते हैं आप।
फिर पावर ऑफ लस्ट और सेंचुअलिटी है, जिसको शहवा कहते हैं, और फिर पावर ऑफ इन्वेंशन और इमेजिनेशन है, वहम कहते हैं। उन्होंने इमाम खुमैनी ने कहा है कि ये जो 3 पावर्स है ना, ये हर इंसान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। कुछ लोगों के अंदर जो were able to like elevate themselves to higher levels of piety have other powers as well. He didn't go into those details, but he said these are the base faculties that exist in every human. He also said that power of ghazab and power of shahwa, we share with animals as well. So something to think about. अच्छा, फिर उन्होंने कहा है कि भाई जितनी भी ये पावर्स है ना आपकी, तो देयर इज अ पॉजिटिव साइड टू देम एंड देयर इज अ नेगेटिव साइड टू देम। तो वो मैंने उसके कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं। उन्होंने कहा कि जो पावर ऑफ पैशन और एंगर है, उसके अंदर ऑब्वियसली जो नेगेटिव साइड है वो तो जैसे अडल्ट्री है, पावर ऑफ पैशन टू किल है, competitiveness is also he said a byproduct of passion, maltreatment of people of your household, becoming aggressive during religious arguments, he said कि भाई कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंटेटिव होते हैं नॉर्मल लाइफ में भी और रिलीजियस मामलों में भी। तो उन्होंने कहा कि इसको बहुत डिटेस्ट किया गया है, और he went into lengths to like detest people from doing that. फिर उन्होंने कहा कि जो पावर जो गजब है, जेंटलनेस और काइंडनेस जो उसका ऑपोजिट है बेसिकली एंगर का, तो उन्होंने कहा वो भी इसी फैकल्टी से आता है। तो एज फार एज यू क्लेंज योर सेल्फ, तो आप में जो जेंटलनेस और काइंडनेस आती है वो भी इसी फैकल्टी, इसी पावर के थ्रू आती है। फिर उन्होंने कहा कि जो एंगर है उसका एक बेनिफिट ये भी है, एबिलिटी टू डिफेंड वंस फैमिली एंड योर कंट्री फ्रॉम अग्रेसर्स, राइट? सो दैट्स लाइक पॉजिटिव एंगर इन हिज व्यू। फिर आ जाता है जी आपका शहवा, व्हिच इज पावर ऑफ लस्ट एंड सेंसुअलिटी। So like उसमें not just like being able to like procreate is obviously a base example of it. उनका बेसिक इंस्टिंक्ट जो होती है इंसान की, लाइक हंगर की, ड्राइव की, ये उससे आती हैं। तो यू कांट लाइक इग्नोर इट, राइट? इट जस्ट एग्जिस्ट देयर फॉर ह्यूमंस। उन्होंने कहा कि अनडाइंग नीड फॉर मोर, कि if you are given one woman you will desire another, if given one estate you will desire another, love of this dunya, like worldly power and riches. उन्होंने ये कहा कि like excessive love of the dunya can consume the faith of a believer more rapidly than 2 wolves let loose on a sheep's herd without a shepherd, one attacking from the front and one attacking from the back. पावर हंगर जो है, इनजस्टिस अगेंस्ट ह्यूमन, ये सब जो शाहवा से आती है। फिर वहम जो है, उन्होंने कहा कि यू कैन यूज योर इमेजिनेशन, लेट्स से टू एनविजन द लव ऑफ इमाम्स, राइट, अंडरस्टैंडिंग देयर मसाइब, creating endeavors for benefits of humanity, right, or forms of ibadat like poetry for Imam Hussain, right, those type of things. Or you could use your power of invention to like to be dishonest, to deceive people, to slander, to backbite, or devising like instruments like atom bomb बना लिया, लोगों को उड़ा दिया, right? Jealousy उन्होंने कहा इस फैकल्टी से आती है। अच्छा, तो अब उन्होंने टेक्निक, ये 4 टेक्निक्स बताई हैं कि हाउ कैन यू एक्चुअली टेम these instincts, right? How do you regulate these instincts? तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि आप ना जो आपके लोली थॉट्स हैं आप उनको इंटरसेप्ट करें ऑन अ डेली बेसिस। So उन्होंने कहा कि whenever you see that your thoughts are stooping to lowly and like mean things, turn your attention aside from them and think about the worthier and nobler things, right? If you have been successful in your attempts, then you should try to repeat this. फिर उन्होंने जो एक चीज़ कही है वो इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा रेगुलेट करें। उन्होंने कहा कि शैतान जो है उसने ये समझ लिया है कि इंसान के पास ना ये फैकल्टीज हैं उसके नफ्स के अंदर, और शैतान ना इंसान को फीड करता है चीज़ें to manipulate his thoughts. So you have to like regulate what gets into your head, right? What you consume, as shaitan is divides many pitfalls to get into your head. फिर उन्होंने कहा कि you should ask for Allah for help as well, right? So that's basically technique 1, which is basically regulating these hidden instincts, like what goes in, what are you consuming on a day-to-day basis, how it will affect you. दूसरी चीज़ है फिर उन्होंने कहा एस्टिमेशन एंड अप्रेजल। तो उन्होंने कहा लॉजिकली यू हैव टू इवैल्यूएट द हार्म्स ऑफ डूइंग हराम वर्सेस द बेनिफिट्स ऑफ फॉलोइंग शरिया। सो उन्होंने कहा कि लॉजिकली यू शुड क्वेश्चन लाइक इज दिस सिन worth committing, right? So due to its consequences and short lasting benefit, I think ये किबला दानिश ने भी अपनी डिस्कशन में कही थी बात के it is not more than like 30 or 40 years
कि from the days when one gains a consciousness and till your like process declines, that just for like that short period of time कि आप उसके अंदर जो है वो किसी गलत काम के अंदर पड़ें, because उसके repercussions बहुत long term होंगे. Is it like worth destroying your eternal hereafter for this short duration gain? फिर एक सवाल है कि मतलब जिस तरह 40 years की आपने बात की, तो 40 years के अंदर जो एक्शंस होंगे उनका thousands of years तक हिसाब होगा. मतलब यानी कि जो आपके बरज़ख के अंदर जो repercussions होंगे उसके वो लॉन्ग टर्म होंगे, राइट? तो हो सकता है कि उन 40 years में आप जो है वो खुदा खास्ता कत्ल कर दें लोगों के, राइट? मतलब तो वो फिर लाइक यू नो उसके लॉन्ग टर्म repercussions हैं, like to cleanse that. तो वो maybe like again like the concept of time doesn't exist, right, in barzakh, so it's hard for me to comment. But his point is that for a short gain, like are you willing to trade you know the long term benefits of being in jannat and so on and so forth? I think वो जो बताया जाता है वो यही है कि अगर अभी कर लो, इसमें गुजार लो, तो फिर यू नो आगे के मराहिल जो है ना वो आसान होते जाएंगे. वो क्योंकि अगर आपने यहाँ नहीं किया तो वो तो इसका वो हुआ ना कि अगर हाथ जो है उसके अंदर वायरस है तो उसका अब ये कि अभी तो कटेगा भाई हाथ अब, you know, like or like then that would be painful, or maybe like you getting a new hand, so and then regenerating that would be uh, a very painful process. तो और उसके अंदर है ये कि यू डोंट नो कि वो आखिर के अंदर वो कॉन्सिक्वेंस के अंदर जो जिस उसके ऊपर गया है वो क्या अगले स्टेज के अंदर खत्म हो जाएगा या फिर वो इट वुड पास ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज एज वेल. सो स्टेजेस बाय स्टेजेस जो है ना डिफिकल्टीज बढ़ती जाएंगी, क्योंकि जो से वो जो एक इमाम का भी कॉल आया था उसके अंदर कि भाई ये जो है ये दुनिया जो है इट्स द वर्ल्ड ऑफ एक्शंस एंड नो रिपरकशंस, और बाद में रिपरकशंस हैं नो एक्शन. सो उसके अंदर जो है फिर समझ लेंगे भाई आप फिर सर्जन जनरल के रेमो करम के ऊपर हैं कि उनका क्या वो है कि वो क्या करना क्या चाहिए आपके साथ. तो तो नो repercussions and then of course फिर बाद में repercussions जो है वो इंसान भुगतेगा. अच्छा, तो मुझे एक बात बताएं, although थोड़ी it's going to be a bit off topic, but how does one maintain the balance between दुनियावी commitments and उखरवी commitments? So for example, आजकल की दुनिया के अंदर लोग जो हैं वो अपनी work lives में इतने busy हुए हैं कि by the time they like start to finish they are like completely exhausted, most of the people, right? Or then they don't have most and more energy like for matlab other things. So how does one should one step take a few steps back? How does one balance like so many competing priorities? तो केवल मैं ना आपको इसका आंसर जो है ना वो इस चैप्टर के जो खुलासा है ना उसके थ्रू मैं दे देता हूँ आपको, एंड इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन. इन दिस होल चैप्टर Imam Khomeini nowhere has pointed to the idea of like doing any excessive ibadat. He hasn't pointed to doing like anything extraordinary in terms of like you know going for like some long vacation on you know some ziyarat trip or just doing something out of the ordinary. His whole like the narrative on Jihad of Nafs is preventing sin and doing your basic wajibat. सही है. Or even like this basic stuff, right? When you make a commitment every day that today I will not commit a sin, right? So whether you're working or whether you're not working, right, that rule applies. और फिर उन्होंने जो लास्ट 2 टेक्निक्स रह गई है ना वो उसमें जो सबसे बेस उन्होंने बात की है, उन्होंने क्वालिटी ओवर क्वांटिटी को तरजीह दी है. उन्होंने कहा है कि भाई यू शुड रिफ्लेक्ट ऑन द मीनिंग ऑफ प्रेयर्स इन कुरानिक वर्सेस.
उन्होंने एग्जाम्पल जो इसमें दिया ना, उन्होंने कहा यू एंड आई आर नॉट ब्लेस्ड विद द स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ इमाम सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम टू रिसाइट लेंथी प्रेयर्स इन अ स्टेट ऑफ सस्टेन्ड एक्सटेसी one at a time. Try to read 1/3 or 1/4 every night with feeling and meditate upon its words, right? So matlab basically it's quality over quantity, and then trying to like abstain from sins, right? तो आप अगर दुनियावी चीजें भी कर रहे हैं राइट, और लाइक अपेरेंटली दुनियावी चीजें भी कर रहे हैं, तो आप उसमें गलत काम नहीं करें, आप किसी का हक ना मारें, आप हराम मतलब चीजें ना कमाएं जाके, राइट? So that is like his base concept of like jihad an-nafs is like nothing more than protecting yourself from sins and just like executing on the base wajibat, and that's really it, and that is manageable for almost anyone. ये बिल्कुल बात सही है आपकी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि गुनाहों से गुरेज और इवन रिस्क हलाल कमाना जो है वो बेसिकली इबादत में ही आ जाता है। बिल्कुल सही कहा मैंने किबला दानिश। हाँ, इसके ऊपर एक वो याद आ गया, तो वो एक किस्सा सुनाते थे ना कि हजरत मूसा ने पूछा था कि उनका नेबर कौन होगा जन्नत के अंदर, तो उनको पॉइंट किया गया था एक आदमी के कि वो कसाई। वो कसाई जो था, उन्होंने ऑब्जर्व किया हजरत मूसा ने, उन्होंने कहा भाई इसमें तो कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात तो नहीं लग रही कि मेरा नेबर बने। तो turned out I think what boils down to was के हाँ was a fair trader, जो चीज होती थी उसी के हिसाब से वो बेचता था, कम नहीं तोलता था। और दूसरी अपने वो एक माँ थी शायद, एक बूढ़ी, हाँ अपनी वालदा का वो जो कि बहुत खास ख्याल रख रहा था। वो दो चीजें थी जो कि that led to his, I think पीछे भी बहुत सारी चीजें होंगी जो कि वो कर रहा होगा, लेकिन इबादत से मुताल्लिक जो जिसने वो कर रही है। लेकिन आई थिंक वही है ना कि आदमी आहिस्ता आहिस्ता करके ना वो निखार अपने अंदर पैदा करे। यानी कि नमाज अगर एक बेसिक बिल्कुल पढ़ रहा है आजकल के, उसके ऊपर उसके अंदर मिसाल के तौर पर सूरह हमद आती है और सूरह कुल हुवल्लाहु अहद आती है, वो इसी के ऊपर अपनी नमाज कायम कर रहा है, तो आहिस्ता शुरू यहीं से करे, डरे नहीं इससे, और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने अंदर वो निखार जो है वो पैदा करना शुरू करे। सूर्य आ गया, फिर उसके अंदर मायने के साथ हो गया, आहिस्ता आहिस्ता करके आप स्टेप्स लेते रहें। और फिर आई थिंक कुछ स्टेजेस आ जाएंगे जो कि मेरे ख्याल में जो कि मुश्किल स्टेजेस है समझने के लिए भी। इनको कभी ख्याल आता है, खैर थोड़ा वो ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जो बिल्कुल आदमी का भी जब स्टेटस एलिवेट होना शुरू हो जाता है ना, देन कम्स द टेस्ट। और जो कि अल्लाह से कुर्ब के लिए ना, वो फिर एक अलग टॉपिक के ऊपर चला जाएगा, लेकिन वो भी आते हैं। यानी अगर आप बढ़ रहे हैं तो फिर आपके पास भी चीज़ें आएंगी जिससे फिर वो कुर्ब हासिल करने के लिए आपको वो चीज़ें गुजरनी पड़ेंगी, जो कि कहते हैं वो हुब अल्लाह जो है, अल्लाह का जो द लव है, दैट बर्न्स एवरीथिंग। और उसके अंदर फिर इंसान जो है वो फिर अपने आप को फिर वो तमन्ना ये करता है कि उसका कत्ल हो, यानी कि खून बहे उसका। ये भी एक है जो कि बहुत ही मेरे ख्याल में जाके एक्सट्रीम एडवांस स्टेज के अंदर जो है वो आ जाएगा। लेकिन ये कत्ल हो या वो इस दुनिया से कूच कर जाए, यानी शहीद हो, राइट? हाँ, शहादत उसका खून बहे उसका, तो अल्लाह की राह में। ये एक स्टेज है जो कि लोग आगे आगे स्टेप्स ले लेके जो है वो करते हैं। इसी मतलब एक वो कहते हैं ना इमाम हुसैन के लिए कि वो अल्लाह की इंशाह थी कि ये हो। तो जो कि मैं अभी भी समझने की कोशिश करता हूँ उसका मायने क्या है। कुछ हद तक कुछ चीज़ें कभी कभार समझ में आती हैं, लेकिन वो है कि आई थिंक कॉन्सेप्ट हैं जो कि समझने चाहिए, कोशिश करें। difficult concepts to understand, जिस तरह वो even वो जो of course it's not necessarily on topic what I'm talking about, लेकिन जिस तरह वो शेर भी है कि तुम एक गोरख धंधा हो अंदर के करबल में
प्यासा करता रहा मोहम्मद का नवासा. तो but at the end of the day everything has its maslahat. नहीं मसलियत नहीं है, वो तो इंशा है, अल्लाह अल्लाह ने विल किया है, यानी कि जिस तरह वो कहते हैं ना इंशाअल्लाह के अंदर कि भाई ये अल्लाह की इंशा है कि he wants to see it done. तो ये होनी है चीज़ें जो है कुछ वो अलग स्टेज के ऊपर आ जाती हैं, लेकिन इंसान जो है खुद भी अपनी वो करता है ख्वाहिश अपने अंदर जो है ना, वो एक स्टेज के ऊपर जाके जब वो जितना कुर्ब हासिल होता रहेगा उतनी ज़्यादा जो है ना जो चीज़ें अभी दुनिया के अंदर हो रही हैं वो उसके लिए कोई मायने नहीं रखती. अभी तो मायने रखती है ना हमारे लिए, क्योंकि हमारे लिए जो है ना वो लिविंग विदाउट देम इज इनकंसीवेबल. हम समझ नहीं सकेंगे कि कैसे मुमकिन होगा, तड़पना शुरू हो जाएंगे कि भाई ये बहुत सारे मसाइल हैं. तो कंफर्ट की ज़िंदगी भी हम लोग सीख करते हैं, ठीक है करें, वो अपने अपने हद तक है वो. लेकिन कह रहा हूँ वही ना, जिस तरह निखार आता जाएगा ना वो उस तरह वो स्टेजेस के ऊपर जो है वो फिर एलिवेशन बहुत है. स्ट्राइव करें आहिस्ता 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 करके. अभी फिलहाल ओवरवेल्म नहीं हो, क्योंकि ओवरवेल्म अभी से हो जाएंगे ना तो चांसेस होते हैं कि छूट जाएं चीज़ें. तो इसीलिए आई थिंक ये वाली जो समरी है जो काजिम ने प्रेजेंट की, ये भी बेसिक पे है. तमाम उरफा जो है ना वो यही बताते हैं, उनके पास कुछ भी चले जाओ ना वो लोग उनके पास जाते हैं और कहते हैं इसमें आजम दे दें. क्योंकि मैजिक वॉन्ड नहीं है कोई कि आपने मैजिक वॉन्ड घुमाई और आपके कब्जे के अंदर जो है वो आ जाए. तमाम चीज़ें वो यही है बेसिक के भाई गुनाह तर्क करे आदमी और शरीयत पे अमल करे, और जो बताया गया इन चीज़ें वो उन पे करें. ये बेसिक है, ये यही वाली जो है ना ये लाइक स्टिक टू दैट एंड आई थिंक योर जॉब इज डन. और जिस तरह मारिफत में इजाफा होता जाएगा उस तरह चीज़ें जो है फिर वो आगे बढ़ती भी रहेंगी, समझ में भी आने लगेंगी. वो वाले टॉपिक्स जो है वो PhD लेवल के हैं. आई थिंक उन पे आई थिंक वो मारिफत खुलने के अंदर भी जो है ना जब आदमी का लेवल होता जाएगा उस पर उसी के बाद अता भी होती है. यार. और I'll be like very honest with you, like when I read this chapter, तो like कुछ बेस कॉन्सेप्ट्स थे जो मेरे पे काफ़ी क्लियर हो गए, राइट. इवन जो कॉन्सेप्ट था ये नफ्स का, आई थिंक इट्स अ वेरी इनलाइटनिंग कॉन्सेप्ट कि भाई ऑन अ डेली बेसिस के अगर इंसान सिर्फ ये एवेल्युएट करे कि मेरे दिन में जो रिएक्शंस होते हैं, राइट, टू सर्टेन इवेंट्स, कि ये मेरे किस फैकल्टी के थ्रू हो रहे हैं, राइट. कि ये मेरी इज दिस माय पावर ऑफ लाइक पैशन और एंगर, और इज दिस लाइक ड्यू टू पावर ऑफ लस्ट और सेंसुअलिटी, इज दिस लाइक. तो इंसान अपने काफ़ी मतलब माइक्रो एक्शंस को ना अच्छी डायरेक्शन में मोड़ सकता है. और जो लास्ट उन्होंने चीज़ इसमें कही है, उन्होंने ये कहा है कि लाइक आप जब ये सारे स्टेप्स कर लेंगे तो एंड में ना आप अपना जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान बनाएंगे ना, इट विल बी टेलर्ड टू योर ओन पर्सनैलिटी. सो हर बंदे की लाइक देयर सर्टेन इविल हैबिट्स जो इंसान को पता होती हैं अंदर से, वो उस पे आया हो जाएंगी और फिर जो है ना वो उनको टैकल कर सकता है. और उन्होंने कहा कि लाइक if you do this like a few times, you will see like transformational change in your own behavior. उन्होंने ये नहीं कहा कि you have to do this like a million times or you have to do this for like 10 years straight. उन्होंने कहा just do this a few times and then you will start seeing like some transformations in your behavior. तो ये एक बड़ा एक interesting concept है कि just to understand the nafs and then trying to like improve ourselves on a daily basis. फ्रेमवर्क दे दिया है इमाम खुमैनी ने, बड़ा जबरदस्त.